alaikum, dear students. I hope you all are doing great. I'm Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be dealing with the English idioms. As you know that in your paper there is a question which carries 10 marks in which you have to write the meanings of idioms and you have to make sentence out of those idioms. So today I'll be telling you what idioms are and we'll be discussing few of the important or few of the most commonly used English idioms. इडियम्स या मुहावरे जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं बेटा, इडियम्स क्या होते हैं? ये मुहावरे होते हैं जिनको हम प्रोवर्ब्स भी कहते हैं. आई हैव सर्च एन आर्टिकल फॉर यू फ्रॉम इंटरनेट एंड दिस इज़ द वेबसाइट रिसोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश. You can also surf internet or Google to find materials on English idioms or different English idioms. So I'm going to read this article and will be explaining it line by line. You may follow me. I hope you all are getting the picture very clear. So let's start. English idioms. English idioms, proverbs, and expressions are an important part of everyday English. लेकिन idioms जो होते हैं जिन्हें हम मुहावरे कहते हैं ये किसी भी लैंग्वेज का या अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो एवरीडे इंग्लिश जो है जो रोज़मर्रा बोली जाती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. इंसान जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं when they talk or when they conversate between one another, so they use lot of idioms. They come up all the time both in written and spoken English. Okay, so idiomatic expressions are actually uh, both written and spoken. It means that it frequently comes in written as well as in spoken English. बोलने में भी मुहावरे यूज़ होते हैं और लिखने में भी अक्सर मुहावरे जो है वो यूज़ होते हैं. इसका मतलब ये है कि idiomatic expressions are not only informal expression, they are formal as well. Because now this is very important point. Idiom है क्या? Idioms don't always make sense literally. You will need to familiarize yourself with the meaning and usage of each idiom. Idioms are certain times said to be you can say फ्रोजन मेटाफर भी कहते हैं इनको. बेसिकली मुहावरे जो होते हैं तो मुहावरों के जो लफ्ज़ होते हैं या उनके जो अपेरेंट मीनिंग होते हैं, लिटरल मीनिंग मतलब अपेरेंट उसके मीनिंग जो होते हैं वो उसके एक्चुअल मीनिंग नहीं होते या इंटेंडेड मीनिंग नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि जनाब इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. ठीक है, तो स्पिल्ट मिल्क क्या होता है? फटा हुआ दूध. तो हम कहते अगर इसका हम देखें कि जो इसका लिटरल मीनिंग बनेगा या जो इसका जनाब अपेरेंट मीनिंग जो बन रहा है या डिक्शनरी मीनिंग बन रहा है वो ये है कि कहीं कोई दूध है जो फट गया और अब एक बंदा उसके ऊपर रो रहा है. नहीं, तो इसका अपेरेंट मीनिंग ये नहीं है, बल्कि इसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है कि जब एक नुकसान हो जाए तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उससे पहले ही उसको ठीक करना. तो फिर हाउ वुड यू गेट द मीनिंग ऑफ idioms when they are not transmitting the literal meaning? So actually this you will have to learn. How would you learn? It is mostly culturally transmitted. आपको या तो आप उसी कल्चर या सोसाइटी का हिस्सा हो तो फिर आप उसको जो है अडॉप्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज और लर्न इट थ्रू द बुक्स. सो लेट्स सी what else this article has for you. That might okay, because idioms don't always make sense literally, you will need to familiarize yourself with the meaning and usage of each idiom. That may seem like a lot of work, but learning idiom is fun, especially when you compare English idioms to the idioms in your own language. The writer is of the opinion that it is not necessary or it is not cumbersome to memorize or to learn the meanings of idioms. It is quite fun. क्योंकि एक देखें एक लैंग्वेज के जो इडियम्स होते हैं या मुहावरे होते हैं वो वर्ड टू वर्ड दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलते. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में लेट्स टेक द सेम एग्जांपल अगेन. आई हैव यूज द इडियम ऑफ स्क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये होता है अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत. ना आप देखें द वर्ड्स विच आर यूज इन इंग्लिश
idioms are quite different from the words which are used in Urdu idiom. So we can say that the literal meaning of English and Urdu proverb is different, entirely different, but they have the same intended meaning. लेकिन अगरचे उनके डिक्शनरी मीनिंग या उनके वर्ड्स जो उसमें यूज़ हुए हैं, लफ्ज़ जो यूज़ हुए हैं, वो डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलहदा हैं, लेकिन दोनों का इंटेंडेड मीनिंग क्या है, या दोनों का जो उसका एक एक मफहूम जो है उन दोनों मुहावरों का, इंग्लिश और उर्दू दोनों मुहावरे का, वो मफहूम जो है वो सेम है, एक ही जैसा है. So now let's start few most common English idioms, the idioms which are usually used during spoken conversation or the written conversation. So there are certain idioms which are given to you. Uh, in this article, I'll be reading that and I'll be telling you the meaning, and then we'll try to make the sentence out of it. Okay, here you can see three columns. The first column is the column of idiom, the second column is column of meaning, and then there is another column, the last one, which actually tells you the usage of the idiom. Now that idiom, what does this usage mean? It will be telling you that whether this idiom can be used or can stand alone without being inserted within a sentence. There are certain idioms which have to be inserted within a sentence to give meaning. कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं या कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जो आपको सेंटेंस के अंदर फिट करने होते हैं, फिर उनके मीनिंग जो है वो ठीक होते हैं या वो अपने मीनिंग देते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट एनी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ, वो एज इट इज़ यूज़ किए जा सकते हैं, उनको आपको सेंटेंस का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं. तो लेट अस स्टार्ट. दिस इज इडियम नंबर 1, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के मायने होते हैं बेटा कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमें अपेरेंटली बज़ाहिर हमें लग रहा हो कि ये हमारे लिए बहुत ही एक बुरी चीज़ है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी हो. जैसे हम कहते हैं सर्टेन टाइम कुछ बहुत बुरा हो जाता है, हम कहते हैं खुदा की कोई मसलिहत होगी उसमें, तो उस बुरे के अंदर जो अच्छाई छुपी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो द मीनिंग इज अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट. एक ऐसी चीज़ जो आपको पहले देखने में बुरी लगी, लेकिन बाद में वो जो है वो बहुत अच्छी जो है आपके लिए साबित हुई. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको इसका इडियम के मीनिंग जो है वो समझ में आएंगे. आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, आप कॉलेज जाना चाहते हैं. वी ट्राई टू मेक अ केस, एक केस बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, यू वांट टू गो कॉलेज एंड इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है. और इंटरेस्टिंगली मैंने एक और प्रोवर्ब भी यूज़ किया, एक और इडियम यूज़ किया विद इन दिस सेंटेंस, दैट इज़ कैट्स एंड डॉग. मूसलाधार बारिश को कहते हैं बेटा रेनिंग कैट्स एंड डॉग. ओके, तो ये तो एक साइड पे बात आ गई थी, तो मैंने आपको बता दी. So let's make a scenario. You want to go college badly because you want to attempt or you want to take a test which had been given to you by your teacher. Okay, now it's raining outside and you cannot go to the college. So what would you think that raining is bad? Okay, later in the evening you will come to know that actually the teacher had not arrived and test was not conducted. Then you would say that yes, that रेन वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि चलें ठीक है वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, मैं बारिश की वजह से गई नहीं, अगर मैं नहीं गई तो अच्छा हुआ मेरा टाइम बच गया. ठीक है, पहले आपको वो बारिश बुरी लग रही थी, लेटर ऑन आपने रियलाइज़ किया कि टेस्ट तो हुआ नहीं, कोई क्लासेस नहीं हुई, कोई पीरियड नहीं हुए, तो आपका टाइम जो है वो बच गया. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक है, नाउ दिस वेरी इडियम इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. नाउ दिस इज योर टास्क. You would try to make sentences out of these idioms. You would make 2 sentences from every idiom. Okay, आप ये idiom यूज़ करेंगे और 2 sentences बनाएंगे. Let's move to the second idiom, a dime a dozen. A dime a dozen का मतलब होता है एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन हो. कॉमन मतलब जिसमें कोई इंडिविजुअलिटी ना हो या बहुत कोई यूनिक सी चीज़ ना हो. A dime a dozen. ठीक. Beat around the bush. Beat around the bush का मतलब होता है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन. आपसे कोई बात पूछी जाए, यू डू नॉट आंसर इट डायरेक्टली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू आंसर. सो व्हाट डू, यू वुड टॉक अबाउट नॉनसेंस थिंग्स और द थिंग्स विच आर इररिलेवेंट. जैसे आपसे कोई पूछ लें, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वाइट इंटरेस्टिंग वन.
अगर औरतों से कोई उनकी एज पूछ ले तो दे वुड से ओ 16 और 30+ समथिंग, दे वुड नॉट टेल यू देयर एक्यूरेट एज। तो ये होता है बीट अराउंड द बुश। क्यों 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 नहीं कहते डायरेक्टली पूरी बात, या जो पूछा जा रहा होता है उसका डायरेक्टली जवाब क्यों नहीं देते? यूजुअली बिकॉज इट इज़ अनकम्फर्टेबल, क्योंकि उसका आंसर देने में वो अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। दिस वेरी इडियम इज ऑल्सो यूज एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो what you have to do, you have to make 2 sentences using this idiom. Better late than never. This is another idiom, very common one. It means that any task, if it is accomplished later on or after the time boundary or time bondage, so we say that okay, इट हैज़ एट लीस्ट इट हैज़ बिन डन। चलें लेट हो गया लेकिन किया तो है ना, क्योंकि ना करने से बेहतर है कि आप उसको लेट ही कर दें। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। अराइव मतलब कहीं पहुंचना, तो इससे अच्छा है कि आप कहीं ना पहुंच पाएँ, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा लेट पहुँचें। Let me give again example, another example. You might have come across to the slogans or the billboards on the roads which reads better late than never. अक्सर हम जब रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें ये बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं। तो दिस proverb actually is used to warn the people against the speed, क्योंकि लोग बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं। तो ये क्या कॉज करती है? स्पीड जो होती है वो कॉज करती है कोई भी कैलेमिटी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता इट कुड प्रूव लीथल एंड पीपल कुड डाई। सो इट्स बेटर टू डाई इन एन एक्सीडेंट, इट्स बेटर टू गेट लेट। मतलब बेहतर ये है कि आप अपनी जगह पे देर से पहुंच जाएं, जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वहाँ देर से पहुंच जाएं। इससे बेहतर मतलब मरने से या ना पहुंचने से बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लेट पहुंचे। So again you have to make a sentence of itself. Again there is, in the usage it is written that this very sentence, this very idiom can be used by itself. यानी अगर ये sentence के अंदर ना भी हो तो ये अपनी complete meaning जो है वो दे रहा होता है। Bite the bullet. Bite the bullet के क्या मायने होते हैं? To get something over with because it is inevitable. किसी चीज़ को छोड़ देना या किसी चीज़ को तौन और करहन बगैर, आपकी कोई विलिंगनेस नहीं थी लेकिन आपने उसको गेट ओवर कर दिया, समथिंग मतलब जान छुड़ा ली उससे, बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। So we have done almost 1, 2, 3, 4, 5 idioms. What you have to do, you have to memorize, try to memorize the meanings of all these idioms, and you have to use them within the sentence. What you have to do when you make sentences, you will write in the comment section your sentences. I'll check them and I'll let you know whether you have made the right sentences or not. So another task which you have is rest of the 5 idioms. Break a leg, call it a day, cut somebody some slack, cutting corners, easy does it. Okay, again I'm repeating: break a leg, call it a day, cut somebody some slack, cutting corners, easy does it. इनके मीनिंग्स यहाँ से भी पढ़िए, गूगल पे ढूंढिए और इनके भी आप खुद से सेंटेंसेस बनाइए। तो इन टोटल यू विल बी एबल टू लर्न almost 10 idioms. Okay, so we will again be dealing with some more idioms in some other lectures. Until then we stop here our idioms, and in the end I have to remind you that your attendance is very much important. You have to fill the form and submit your attendance, and yes, please do subscribe the channel so that you will be updated about the current lectures. So till the next lecture, Allah Hafiz, take care.